Good evening, everybody. Welcome to the podcast session of Finacle Institute. Today we have Karan Kumar Jain, one of our students, who literally shattered records in scoring 1820 marks out of 1900 score in across the world. Now, for everybody's reference, 1900 is the maximum score you can get in CFA examination, and 1820 is genuinely a very remarkable score. Even though CFA Institute doesn't really give any quantified version of scores, that what exactly is your rank and what percentage you have scored. But historical data suggests and the samples suggest that 1820 is genuinely in top X percentage of entire world. Now we are here to understand Karan's journey through this CFA preparation mode, and we would want to request him to share his inputs रिगार्डिंग हिज लर्निंग थ्रू दिस जर्नी. इन्होंने क्या क्या चीजें सीखी है सीएफए के प्रिपरेशन के टाइम पे, ऐसी कौन सी चीजें जो कैंडिडेट्स ने टिपिकली ध्यान रखनी चाहिए एंड व्हाट नॉट. सो वेलकम करण टू टुडेज सेशन. थैंक यू फॉर कमिंग ओवर इन टुडेज पॉडकास्ट. सो आई हैव Pleasure. लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. Sorry, you were saying? It's my pleasure you have invited me. Thanks a lot for that. All right. So I let's start with today's questions. So my first question to you is, when you saw that 1820 score, what was your first thought? What was your reaction? Were you really expecting that high score? Sir, when my result came, I was in temple, and first of all, I thank God for the result. Along with hard work, I think it was God's grace too. The first thing which came to my mind was, यार मेहनत करने से हो तो जाता है. मेहनत करने से आप रैंक वाले नंबर भी ला सकते हो. I wasn't expecting a rank like number, but definitely I was expecting a good number. This time, like, I had worked hard a lot in CFA L1 prep, and इट वाज लाइक आई एम गोना पास. मुझको तो सर एग्जाम देते ही पता चल गया था कि आई एम गोना पास, लेकिन ये नहीं पता था कि 1820 प्लस स्कोर आ जाएगा. एंड जब आया, आई वाज लाइक सो हैप्पी. सबसे पहले तो मम्मी पापा को बताया, दे वर आल्सो टू हैप्पी. एंड देन आई थैंक गॉड अ लॉट फॉर इट, एंड माय So टीचर्स टू, लाइक you यू. said this time. So was this your first attempt or second attempt? नहीं Just सर, फर्स्ट clarify. अटेम्प्ट. फर्स्ट Ah, अटेम्प्ट. because I know your education qualification. You joined CFA training immediately after 12th. So this was your first attempt because after first year of your graduation, you appeared for the level 1 examination. So this नहीं was your सर भाई, first attempt. दिस टाइम आई मीन कि मतलब जैसे कॉलेज की एग्जाम तो इट्स लाइक एक दो हफ्ते पहले पढ़ के ऐसे ही चले जाते हैं. दिस टाइम आई मीन बाय फॉर सीएफ एल1 आई प्रेप्ड अ लॉट. दैट्स व्हाई आई सेड दिस. Okay. Got it. Got it. Got हाँ. it. So let's take a journey through time, right? So when you were in 12th standard, what made you choose CFA as a professional certification or finance as a career? What prompted you towards that? सर सबसे पहले तो मतलब सीएफए के बारे में मुझे पता ही आपकी तरफ से चला था. व्हेन आई वाज लाइक इन 11th स्टैंडर्ड, व्हेन आई केम टू नो अबाउट सीएफए, उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि सीएफए लाइक कोई कोर्स होता भी है. आप वर्कशॉप के लिए आए थे, फाइनेंस वर्कशॉप के लिए, वेयर यू मेड ऑल अ स्टूडेंट इन टच विद ऑल द फाइनेंस कोर्सेज लाइक सीएफए, एफआरएम, फिनब्रिज, फिनप्लस, व्हिच Finacle conducts. एंड तब मुझे पता चला लाइक सीएफए इज समथिंग व्हिच इज फॉर मी. You taught us like many financial concepts, which I was like, oh wow, it is something which I always wanted to learn. And Karan, this is line for you, and you can make a good career out in it. So that was the reason I chose CFA. And more than that, उसके पहले से थोड़ा स्टॉक मार्केट में थोड़ा हो गया था कि मतलब मजा आ रही थी देखने के अंदर भी कि हाउ निफ्टी वर्क्स, हाउ एन इंडेक्स वर्क्स, हाउ पोर्टफोलियो इज मैनेज्ड, हाउ इक्विटी वैल्यूएशन इज डन. तो थोड़ा 11th 12th के अंदर आना था, बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पता चल रहा था, अकाउंट्स भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर फाइनेंस के अंदर भी थोड़ा देखते हैं. एंड देन दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू गो ऑन फॉर सीए. यार, बट 12th में जनरली फाइनेंस का ना एक भी सब्जेक्ट होता नहीं है. लाइक आई एम ग्लैड यू वर वन ऑफ द कैंडिडेट्स जहाँ पे हम लोग गए थे, बिकॉज वी गो टू अ लॉट ऑफ स्कूल्स टू कंडक्ट दीज सेशंस, एंड आई एम ग्लैड वी हैड कम टू यू टू योर स्कूल एट दैट पॉइंट इन टाइम. बट 12th में ना फाइनेंस के कोई ऐसे सब्जेक्ट्स होते नहीं है. सो हाउ डिड यू नो दैट, after interacting with us, that's fine, where we talked about these fields, but how did you come to know that आप फाइनेंस में अच्छा करियर बना पाओगे? आपको ऐसा क्या फैसिनेटिंग लगा इस फील्ड के बारे में, एंड व्हाई यू चोज सीएफए? द मेन रीजन वाज कि मुझको थोड़ा सीए पसंद नहीं आ रहा था. आई वुड से ट्रुथ एकदम कि आई वाज प्लानिंग फॉर सीए टू. लेकिन सीए के अंदर इट वाज लाइक लॉ, टैक्सेशन, ऑडिट, जो मतलब थोड़ा मगिंग अप काइंड ऑफ थिंग था. तो मगिंग अप इज लाइक
a weakness of my side. For my side is like I'm always conceptual driven. मुझे quants पसंद था, थोड़ा सा मुझे finance इसलिए भी पसंद था because इन क्लास 11th 12th हमको एक प्रोजेक्ट मिला था, इकोनॉमिक्स के अंदर भी प्रोजेक्ट था, बिजनेस स्टडीज के अंदर भी प्रोजेक्ट्स थे, तो मैंने वहाँ पे फाइनेंस वाले थोड़े प्रोजेक्ट्स बनाए थे। तो वहाँ पे आई वाज इन टच विद guy named Sayyam Jain, who was like a Finbridge program member, and उसके थ्रू भी मुझको थोड़ा बहुत पता चला। उस टाइम आई थिंक उनका फिनब्रिज प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सिखाई मुझको कि करंट इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट नाम की भी कोई चीज होती, तब तक तो मुझको ये पता ही नहीं था कि व्हाट इज इक्विटी रिसर्च। तब मुझको थोड़ा बहुत पता चला एंड उसने समझाया कि थोड़ा अगर तुमको जानना है व्हाट इज फाइनेंस तो थोड़ा सीएफए के बारे में सीखो। एंड ऑल्सो मेजरली तो मुझको आप लोग के थ्रू ही पता चला था जब आप सेमिनार कंडक्ट करने आए थे। इट वाज द मेन थिंग फ्रॉम वेयर आई केम टू नो। Got it. Now, when you started going for CFA, like, what role did Finacle play in your journey for clearing CFA level 1 in first attempt? So Finacle played like the most major role Finacle has played. In one line, if I would have said, I would have to say like Finacle was key to CFA L1 prep. And sir, I always wanted to know more something about what's written in books and the current trendy market knowledge, which could help me in connecting the CFA L1 curriculum. And when I joined CFA, Finacle, I came into touch like teachers like you, Needy ma'am, Lockheed sir. I used to attend like Lockheed sir's online batches which are available on Finacle app because we can't have like direct campus immersion at Bombay. And all of you teach like absolutely great. You like connect the real life case studies, your personal case studies, what you have seen in real life with the CFA L1 curriculum, and blended up all of it like. Uh, helps us in gaining so much knowledge which we gonna carry like all throughout your career. And other than this sir, अगर उसको finacle को मतलब एक particular चीज में describe करना हो ना, उसका question bank होगा। Sir, when I exited the exam hall in after giving CFA L1 exam, तो सर सबसे पहले मुझको कोई सी चीज याद थी ना, it was none other than the finacle question bank। सर finacle question bank के अंदर आपने इतना अच्छा question bank बनाया, like everything is covered in it। मेरे एग्जाम के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे ना, ऑल वर लाइक कवर्ड इन फिनाकल्स क्वेश्चन बैंक। इतना ग्रेट है उसके अंदर, इतने ट्रिकी क्वेश्चन है ना सर कि मतलब मतलब सीएफए एल वन एग्जाम से लेके एक छोटा सा गेम लगता है। फिनाकल के क्वेश्चन बैंक इतना वाइड है, इतना ट्रिकी है, इतना कॉन्सेप्चुअल ड्रिवन है। एंड दैट वाज आल्सो थिंग। एंड आल्सो सर मतलब मुझे थोड़ा कैंपस इमर्जन भी चाहिए था, तो फिनाकल हैज प्लेड like a great role in it, and you all have always motivated me in my bed time when I was thinking like यार सीएफए होगा कि नहीं, I would able to clear CFA or not, like that's all. Now, coming to exact that last statement which you mentioned, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, एक फेज आता है प्रिपरेशन के टाइम पे, बिकॉज यू फील दैट प्रेशर व्हेन यू आर रीडिंग बुक्स। आपको लग रहा होता है करके ये मुझसे हो तो जाएगा ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेज आता है, नॉट जस्ट CFA, इट कैन टेक एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सो व्हेन यू वर गोइंग थ्रू दिस फेज, हाउ हाउ एग्जैक्टली डिड यू मेक इट फ्रॉम दैट पॉइंट टू टुडेज पॉइंट? Sir, पहले तो when I started giving test at Finacle question bank, my score was like 50%, 60% in some subjects, particularly like ethics, ये सब। तो I used to go to like नीरव sir, sir यार मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, कैप्लन स्पेदर से पढ़ रहा हूँ तो इट्स लाइक मेरा स्कोर इतना गंदा आ रहा है, करिकुलम से पढ़ रहा हूँ तो स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है। एक एक रीडिंग के अंदर कभी कभी 3 3 4 4 5 5 दिन लग जा रहे हैं। एट दैट पॉइंट नीरव सर हेल्प मी आउट अ लॉट। उन्होंने मेरे को बताया कि कैप्टन श्वेता से कैसे पढ़ना है एंड करिकुलम से कौन कौन चीजें पढ़नी है। ही यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी, इवन यू टू। आपको भी कभी लाइक 9:30 के अराउंड क्लास खत्म होने के बाद मैं आता था आपके पास, सर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, आप बताओ कैसे करूँ सर, पॉइंट्स के अंदर ये हो रहा है, इसको रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ कैसे कनेक्ट करूँ जिसको मैं हमेशा याद रख पाऊँ एग्जाम तक। यू ऑल हैव ऑलवेज हेल्प मी आउट सर। मतलब ये एक कैंपस इमर्जन का बहुत अच्छा फायदा है मुझको एट फिनेकल। आई थिंक एट दैट पॉइंट फिनेकल हैज ऑलवेज प्लेड अ ग्रेट रोल फॉर मी। मतलब कभी भी मुझको ऐसे नहीं लगने दिया कि सीएम नहीं होगा। यू आर तो ऑलवेज लाइक यार फेरन क्या है यार, तू तो ऐसे ऐसे निकाल लेगा। यू वन शेड मी दैट एंड दैट रियली मोटिवेटेड मी। नहीं, आई एम ग्लैड, बट देख ऐसा होता है ना करण, दैट यू आर नॉट द ओनली स्टूडेंट, राइट? देयर आर अदर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट लाइक यू। अब देख ऐसा होता है कि वी डू आवर पार्ट, बट लेकिन एक चीज होती है, हर बच्चा उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, हर कोई वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता। तो फॉलो अप क्वेश्चन ऑन व्हाट यू जस्ट सेड, आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थे एंड दे
cleared, some of them marginally did not clear. आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज उन्होंने नहीं करी जो आप अभी अपियर करने वाले कैंडिडेट्स को एडवाइस करना चाहोगे कि यार ये चीज जरूर देख लेना बिफोर यू गो फॉर एग्जामिनेशन? बिकॉज सी, फेब्रुअरी अटेम्प्ट इज वेरी नियर, देयर आर फ्यू डेज लेफ्ट. Just a piece of advice for February attempt students, because you've gone through that process. What would be your advice to those students? अभी इट्स लाइक वेरी नियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस व्हाट आई विल गिव फ्रॉम माय साइड इज की ऑलवेज गो फॉर ब्रॉडर सेंस। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक के अंदर ही पूरा अंदर घुस जाओ, ये मेरी मिस्टेक थी। एंड पर्टिकुलरली हमेशा ट्राई आउट करना कि आप हर एक चीज कवर करो। दीज आर माय वर्ड्स, दीज आर सर योर वर्ड्स। आप, मैं एक बार एक ऐसे टॉपिक के अंदर फंस गया था क्वांट्स के अंदर, मैं इतना डीप जा रहा था, यू आर लाइक करण वेट वेट वेट, करण सिर्फ ये एक टॉपिक ने, फाइनेंस बहुत बड़ा है एंड यू हैव टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स। तो आपने ही मुझे बोला था एंड इट रियली वर्कड आउट फॉर मी। देयर वर लाइक 2 to 3 रीडिंग्स जो मैं छोड़ने वाला था, लेकिन आपने बोला करण ठीक है, तुमको नहीं आ रहा समझ, तुमको कुछ नहीं आ रहा, तुम इसको ऊपर से पढ़ लो। एंड सर आई विल बी एकदम ऑनेस्ट, एक रीडिंग ऐसी थी, आई कैंट टेक द रीडिंग्स नेम, लेकिन वो एक ऐसी रीडिंग थी जो यू weren't expecting even like one question from that side, and 3 questions came in my examination from that reading. So it was like it really helped me out your advice कि हर एक रीडिंग कवर करनी सबसे पहले तो, एंड सेकंड जितने ज्यादा हो सके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना हर एक रीडिंग पे। जो एलियस क्वेश्चन है, जो पोर्टल पे अवेलेबल है अपन को, अपन सबको, वो तो कंपलसरी सॉल्व करने ही करने हैं। उनके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, उनसे थोड़े इजी आएंगे, लेकिन आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। एंड पर्टिकुलरली जितना हो सके फिनेकल क्वेश्चन बैंक जितना ज्यादा सॉल्व कर सको उतना करो। लाइक उससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब फिनेकल क्वेश्चन बैंक जैसे ही आते हैं। एंड द लास्ट थिंग आई वुड से कि ऑलवेज अटेंड मॉक्स। इंस्टीट्यूट के जो 2 मॉक्स दे आर तो लाइक कंपलसरी, दे आर लाइक द रियल एग्जामिनेशन सिमुलेशन। आपको हर एक एग्जाम के क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट लाइक उसी के उसी लेवल के आएंगे, और एग्जाम का पूरा जो आपका लाइक टफनेस लेवल होने वाला है वो उन मॉक्स के हिसाब से ही होने वाला है। एंड ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज लाइक 2 to 3 times जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। लाइक इन 2 to 3 weeks आपको 2 3 times तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। राइट, गॉट इट. सी, आपका तो चलो कैंपस पे ऑफलाइन ट्रेनिंग था. अपने हम्म। काफी बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन भी ट्रेनिंग करते हैं थ्रू प्री रिकॉर्डेड सेशंस, राइट? हम्म। तो उनके लिए भी हम लोग जनरली सेम एडवाइस देते हैं जो अभी जस्ट आपने दी. जैसे आप जानते हैं कि कैंपस पे भी फिनिश ऑफ पोर्शन 60, ऑलमोस्ट 45 days to 60 days बिफोर द एग्जामिनेशन. और तब से Right. हमारा एक T2 T3 का एक स्केड्यूल शुरू होता है कि जहाँ पे 5 दिन तक के आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट होंगे. So that way it ensures that revision happens. So I hope viewers who are watching this genuinely helps you. And trust me, what Karan said is essentially an echo of what other successful candidates who have cleared at Finacle have said again and again. Follow that schedule to the deadline. Make sure you appear all the mocks which we have planned for you in that schedule. And last but not least, do not lose hope. Whatever you need, you just need to message us. We'll always be there for you. Now, moving to the next question which we have. Now, now this is a question which I thought of asking because generally लोगों को क्या लगता है कि यार 1820 मतलब ये पहले से ही टॉपर वॉपर रहा होगा, ठीक है? तो लोगों को लगता है कि यार ये 1820 लाया मतलब 12th में भी खतरनाक फोड़ा होगा, 10th में भी खतरनाक फोड़ा होगा, पहले से ही एकदम टॉपर रहा होगा. Were you that kind of a kid or were you the other way around? And if you were the other way around, I think that's a very good story to listen. Again, journey from that point to this point. How exactly did you manage that? सर 10th 12th के अंदर तो लाइक आई वाज हैविंग अ डिसेंट स्कोर। आई थिंक उसको कवर नहीं करे तो ठीक है, मतलब आई वाज हैविंग 90% स्कोर इन बोथ 10th एंड 12th अबाउट दैट। लेकिन हाँ, अभी सीएफए एल वन की बात करूँ तो माय स्टार्ट वाजंट दैट ग्रेट, बिकॉज सर सीएफए एल वन के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है लाइक विच आई टच्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। ऐसी चीजें थी जो मुझको एक्चुअल में पता ही नहीं था, और मेरा पढ़ने का अप्रोच बहुत अलग था बाकी बच्चों से। आई वाजंट Correct. चूजिंग कैप्लन स्क्विजर, आई वाज चूजिंग सीएफए एल वन करिकुलम ओवर कैप्लन स्क्विजर। मेरा पढ़ने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट था, तो आई वाज टेकिंग लाइक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम। जब तक सर लाइक 10 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर सर पूरा एक रीडिंग करवा दिया करते थे, पूरी एक रीडिंग मतलब पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाया करता था, तब जाके मेरी 2 रीडिंग खत्म होती थी, 2 चैप्टर्स खत्म होते थे मेरे। ये सब प्रॉब्लम्स मैं भी फेस कर रहा था एंड माई स्कोर वॉजंट ग्रेट। आई बी एकदम ट्रू ऑनेस्ट, मेरा स्कोर वॉज लाइक 50% 60%, बिकॉज ऑल टॉपिक्स वर न्यू टू मी। द थिंग which worked out for me was number one discipline, number two practice, and number three it was question solving. These were the main things which worked out for me.
आई वॉज लाइक सो डिसिप्लिन कि यार करण ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो भी कंपलसरी रात को जागना है, कंपलसरी सुबह जल्दी उठना है, खत्म करना ही करना है। एंड कंपलसरी जितने भी क्वेश्चन है सबके मतलब जितने जितने टाइम रिवीजन कर सको उसको रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग वाज द मेन थिंग व्हिच प्लेड लाइक अ मेन गेम फॉर मी, मेन रोल फॉर मी। फिनेकल के लाइक क्वेश्चन बैंक इतने सारे, आप लोग थक जाओगे लेकिन वो क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं होंगे। एंड माइंड में यार मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, फिनेकल का क्वेश्चन बैंक इज लाइक द रियल गेम। अगर वो आपने ढंग से कर लिया ना तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते। एग्जाम वाज लाइक, फॉर मी एग्जाम वाज लाइक अ लिटिल गेम। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एग्जाम में मैंने 1 आवर पहले दोनों पार्ट खत्म किए, मतलब 2 घंटे पहले मेरी एग्जाम हो गई थी, आप ऐसा भी समझ सकते हो। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन सॉल्विंग विच आई यूज टू डू ऑन द फिनेकल क्वेश्चन बैंक। ऐसा क्वेश्चन बैंक आई डोंट इवन थिंक कि आपको लाइक और कोई प्रेप प्रोवाइडर प्रोवाइड भी करेगा। So like only three things follow. Number one, discipline. Number two, practice. And number three, question solving. And number four, एक और चीज बोल देता हूँ, cover the broad syllabus, not a particular topic in that syllabus. Always try to cover the broad syllabus. मैंने mistake की है, नहीं तो शायद तक मैं 1850 प्लस और स्कोर कर लेता। हाँ, like that. करण, एक चीज ना मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, अब मैं मेरा आंसर यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आई एक्चुअली वांट टू लिसन टू योर आंसर ऑन दिस। हम्म। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट इन टच विथ मी 15-20 days बिफोर द एग्जामिनेशन, एंड लेट्स से दे आर थिंकिंग कि सर व्हाट इज द 15 days प्लान, आप क्या रेकमेंड करोगे ये 15 days? यू वेरी वेल नो कि अपना वो 45 days का प्लान जो अपन बैच में शेयर करते हैं वो तो हर कोई फॉलो कर रहा होता है, लेकिन कुछ हम्म। बच्चे होते हैं जो थोड़ा स्टार्ट से थोड़े से बैकलॉग पे चल रहे होते हैं कि लास्ट 15 डेज बचे हैं। तो वो बैकलॉग के अंदर डिड यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड्स दिस फेस द सेम सिचुएशन, एंड इफ यस, what solution did you or your friends work so that it basically worked in your favor? Okay, so it's like last 2 week prep, right? Yeah. हाँ। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि लास्ट 2 वीक के पहले आपका लाइक एक बार सिलेबस तो खत्म हो गया होगा। आई एम अज्यूमिंग दैट। एंड लास्ट 2 वीक्स के अंदर एक ही चीज बोलूंगा, हर एक हफ्ते के लिए एक एक डिसाइड करके रखो कि मतलब एटलीस्ट 2 बार तो आपको रिवीजन करना है। एंड कंपलसरी 2 बार रिवीजन करने के बाद अगर आप फाइनेंशियल के स्टूडेंट है तो हर रिवीजन के बाद आपको फाइनेंशियल मॉक देना ही है कंपलसरीली। राइट, एक एक मॉक तो आपको देना है। अगर आप फाइनेंशियल स्टूडेंट नहीं हो देन आप अगर और कोई से प्रेप प्रोवाइडर भी यूज कर रहे हो या फिर आप जो भी यूज कर रहे हो, आपको एक एक तो मॉक देना ही है हर एक रिवीजन कंप्लीट होने के बाद। And it's like one revision for all the 9 subjects except ethics. Ethics is always a key player, right? Ethics को like you will have to prepare like revise at least like 4 times, at least 4 times. Mind me when I say 4 times, then सच में, because ethics is something like जो जहाँ पे आपके सच में 1.5 लाख रुपए दाव पे लगे एग्जामिनेशन के। Ethics is something जो या तो डुबा देता है या तो फिर अच्छा रिजल्ट लेके आ जाता है। Yeah. सॉरी फॉर दैट। सो आपको हमेशा इसके अंदर प्रिपेयर करिए। स्ट्रेसफुल टाइम आएगा लेकिन माइंड जब आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे ना तो इट विल बी लाइक एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा खत्म कर लोगे रिवीजन। एटलीस्ट मतलब गो फॉर लाइक आप 2 बार तो रिवीजन करो या 2 मॉक दो, एंड एथिक्स को 4 टाइम रिवीजन करो, एंड दैट्स ऑल। यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन अगर इसको अच्छे से फॉलो किया। Got it. And I also, one piece of advice which I would like to add to that answer for everybody who's watching this video. See, ethics is one subject जहाँ पे literally 20% आपका syllabus test हो रहा होता है, right? And उसकी beauty पता है क्या है? Unfortunately, till last day, even after the examination, students are not sure कि सर पता नहीं कैसा गया है, क्योंकि कभी कभी लगता है बहुत अच्छा गया तो मार्क्स ही नहीं आ रहे होते, और कभी लगता है बहुत बुरा गया तो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं. So it's basically a googly of CFA, right? So the way you can also prepare is when you're practicing ethics question. One question has 3 choices, right? So when you solve one answer, you will get, but remaining two why they are wrong, essentially you also need to know that. So that way you're solving 3 questions in one single question. And one piece of advice which we usually give to all of our students for last minute preparation of last 15 days is daily spend 1.5 hour in solving ethics questions. Because again, as Karan mentioned, you need to revise that content at least 4 times, but still just reading the standards is not going to cut out things for you. You really need to practice. And for that, we highly recommend the CFA curriculum material. It's genuinely very good. All right. Now moving to the next part, Karan, now when you started studying for these subjects, you are a commerce undergraduate, right? So any particular subject which you thought was extremely challenging, and how you coped up to that challenge? आई वुड से particularly challenging. Sir, I know it would sound weird, a bit weird. Like it's like कि class 12th के अंदर I was like this Gujarat rank 1 in applied mathematics. Even though
even though I found out quants to be a little hard. I know it will sound weird, a bit weird, लेकिन मुझको तो भी quants थोड़ा hard लगा on a part like regression, hypothesis. Although hypothesis was a part of our syllabus in class 12 applied mathematics 100% दो, yes. तब भी हमको लगा hard because वो हाइपोथेसिस जो हमने क्लास 12 के अंदर पढ़ा था एंड जो हाइपोथेसिस हम अभी पढ़ रहे थे उसके बीच में बहुत फर्क था. इट वाज द डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड द रियल लाइफ यूज. हमको मतलब लाइक आपको पहचानना पड़ेगा आपको कौन सा हाइपोथेसिस कौन सा कब फॉर्मूला कब यूज करना है. एंड सर रिग्रेशन, आई थिंक रिग्रेशन वाज द वन ऑफ द चैप्टर व्हिच आई वाज लाइक यार करण ये मैं छोड़ने वाला हूँ, यार ये तो नहीं होने वाला मुझसे, ये तो नहीं होने वाला. एंड आई सॉ योर वीडियो सर, माइंड माय वर्ड्स. आप जो बोलते हो ना जब आप पढ़ाते हो, लाइक आपके मुंह से निकले हुए वर्ड्स आर लाइक सरस्वती की वाणी. आप जो क्वेश्चन Yeah, बोलते हो ना, आई एम रियली आई एम ग्रेटफुल दिस फॉर दिस टू यू. आप जो बोलते हो ना कि बेटा ऐसे क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है. आप अगर आपने अगर बोल दिया ना मतलब आपका तो मैं एक वर्ड लिखता हूँ जो आप बोलते हो. आपने बोला कि करण ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आता है. एंड देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच केम, which really came what you said to me, which were while class, right? And sir, really मैं इतना खुश हुआ था ना, मैं तो सच सच में एग्जाम खत्म होने के बाद क्लास में आया था, लेकिन आप वहाँ पे थे नहीं, आप कहाँ बाहर गए हुए थे. आई वाज लाइक सो थैंकफुल टू यू कि मैं रिग्रेशन पढ़ के गया. मेरे मुझको तो कॉन्स हार्ड लगा था एंड आफ्टर कॉन्स आई वुड से लाइक ना ना नथिंग है उसके अलावा तो और कुछ हार्ड नहीं लगा था. मुझे तो कॉन्स लगा था इवन आफ्टर बीइंग फ्रॉम लाइक अप्लाइड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड. for viewers benefit, quants has only 8% weightage in entire CFA, right? So, but still, I understand the problem which it creates. The beauty about CFA is there's no minimum subject passing criteria, but aggregate basis, you do need to score at least 70-75% is essentially what even CFA talks about in their surveys. If you are able to score that much, then you clear the examination. Now, अब देख करण, एक चीज ना, जैसे आप खुद भी 12th स्टूडेंट रह चुके हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th-12th में पता नहीं कहीं से सुनते हैं कि सीएफए बहुत डिफिकल्ट है। उनको लगता है यार मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरे बस की बात नहीं है। दे फील अंडर कॉन्फिडेंट। सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ व्हाट इट इज़ और व्हाट इट इज़ नॉट। इट इज़ अ मैटर ऑफ देम फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट। आपका पीस ऑफ एडवाइस क्या रहेगा ऐसे बच्चों के लिए? देखो आई विल तो ऑलवेज से दैट सीएफए इजंट अ टफ एग्जाम. कभी भी सीएफए कोई टफ एग्जाम है ही नहीं. सीएफए सबसे पहली बात, सीएफए इज अ कॉन्सेप्चुअल ड्रिवन एग्जाम. The questions at exam are like conceptual and not tough. If you have good grasp over the concepts blended with the revision and question solving, then definitely you're gonna clear exam like in, in like easily in an easy way. The common things that I see across all candidates which who are like not able to clear examination is like या तो वो कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं करते या तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते अच्छे से. अगर ये दोनों अच्छे से करोगे तो लाइक डेफिनेटली यू गोना क्लियर एग्जाम इजीली. I'm saying again these words. You can take it as like as a quote for CFA L1. CFA isn't tough. It is conceptual driven. And at Finacle, if you are at Finacle, then definitely I'll तो always say कि यार कॉन्सेप्ट तो की तो कोई चिंता ही नहीं. यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं फिर Finacle के अंदर तो कॉन्सेप्ट तो लाइक एकदम अच्छे रहेंगे. अभी मैंने बोला जो सर बोलते हैं इज लाइक आई तो लव हिज वर्ड्स. आई तो लव पर्सनली सीरीज पर मैं हर एक वर्ड्स लिखता हूँ उनके जो ये बोलते हैं ना कि आईआरआर के अंदर ऐसे हाउ डज आईआरआर मतलब डिफरेंशिएट विद एनपीवी. ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना लाइक मैं तो हर एक वर्ड लिखता हूँ. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज लाइक ग्रेट. तो ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रेदर देन लाइक कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ लूंगा इसमें पास हो जाऊंगा, एक ये पढ़ लूंगा इसमें पास हो जाऊंगा, ये चीज छोड़ के चले जाऊंगा. ऑलवेज ट्राई टू कवर ऑन लाइक हर एक चीज कवर करनी है. और जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, इट्स लाइक अंडर कॉन्फिडेंट हर एक जन रहता है. इवन आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट बट लेकिन फिनाकल के मैंने इतने सारे मॉक्स दे दिए थे ना सर. आई वुड से कि मैं एग्जाम डे पे लाइक एकदम मस्ती मस्ती में ऐसे ऐसे एक बैग लेके गया था, एकदम मस्ती मस्ती में गया था एंड केम हैप्पी टू अगेन. थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है हाफ एन आवर बिकॉज आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग. थोड़ा बहुत नर्वसनेस हुआ था हाफ एन आवर बिफोर द एग्जाम, लेकिन आई वाज लाइक ऑल हैप्पी ऑल थ्रू आउट द डे व्हेन आई वाज गोइंग फॉर एग्जामिनेशन. आपका प्रिपरेशन पैटर्न क्या था व्हेन यू जॉइंड फिनाकल? आपका सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन पैटर्न, सी क्लास में हम लोग क्या कराते हैं ये हम लोग तो हर बच्चे को बताते ही है एंड हम लोग यूजुअली सेल्फ स्टडी के लिए गाइड भी करते हैं, बट विदाउट मी एक्चुअली पुटिंग वर्ड्स इन योर माउथ, आई वांट टू नो आपका सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन पैटर्न क्या था? सो यू जॉइन इमिडिएटली आफ्टर 12th, राइट? सो तब कैसे आपने शुरुआत कैसे करी थी इस चीज की इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन पैटर्न फॉर अ 12th किड कि टू स्कोर सच रियली गुड मार्क्स? एक मंत्रा क्या है जो आप बच्चों को बताना चाहोगे कि ये कर रहा था मैंने इस तरीके से और आप भी अगर ये करोगे तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट एंड अप वेर यू पर्सनली करंट टुडे आर?
ओके, सो आई गिव द आंसर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। सबसे पहले इट्स लाइक कि आप जिस भी प्रेप प्रोवाइडर, कोई प्रेप प्रोवाइडर लिया, नॉट नॉट ओनली अबाउट फिनेकल, लाइक कोई से भी प्रेप प्रोवाइडर से हो, सबसे पहले जो भी रीडिंग कंप्लीट करा है वो रीडिंग कंप्लीट करो। सर का सबसे पहले पूरा लेक्चर देखो जो भी है, एंड उसके बाद में लेक्चर देखने के बाद खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज समथिंग विच विल वर्क वन डे बिफोर एग्जामिनेशन इज योर नोट्स। एंड माइंड मी, एग्जाम के एक दिन पहले जो नोट्स काम आएंगे ना, आपको आपको तब याद आएगा कि यार नोट्स बना लिए होते ना, बहुत अच्छे रहता। आज मैंने तो नोट्स बनाए थे। एंड नंबर टू, जैसे आपकी वो रीडिंग कंप्लीट होए ना, आलस बहुत आएगा, लेकिन माइंड में यार एलियस पूरा सॉल्व करो। लर्निंग इको सिस्टम का जो क्वेश्चन है, दे आर लाइक द रियलिटी चेक गिवन। वो आपको एकदम इतना अच्छा रियलिटी चेक देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए हैं। आपको पता चल जाएगा कि मुझको वापस रीडिंग देखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इट्स लाइक दैट कि आपको नंबर थर्ड पे तो आपको सारे एलियस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एंड नंबर फोर पे जो आपको करना है, इट्स लाइक कि अब आपको फिर एक स्केड्यूल बनाना है कि अब इसको आपको वापस कब रिवाइज करना है। माइंड माई वर्ड्स, बिकॉज एक ऐसा टाइम आएगा, आप 1-2 महीने के बाद आपको ऐसा फील होगा। एंड मुझको भी फील हुआ था, मेरे सारे दोस्तों को भी फील हुआ था जो मेरे साथ प्रैप कर रहे थे। इट वाज लाइक कि हम कॉन्सेप्ट्स भूल रहे थे आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हम सारे करेक्ट। कॉन्सेप्ट्स भूलने लग गए थे। एंड अब तो मैं आपको मेरी गलतियों से बता सकता हूँ कि व्हाट वर्क बेस्ट फॉर मी वाज कि हर 1-2 महीने के बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा उसका। 1-2 महीने के बाद भी नहीं तो लाइक कम कम से कम 15 दिन इसके बाद का रखो स्केड्यूल कि हाँ, इस 15 दिन के बाद मैं इस रीडिंग को वापस रिवाइज करूंगा। इस 15 दिन के बाद मैं इस पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा। एंड धीरे धीरे करके लाइक दिस सीरीज ऑफ एक्शन विल मेक यू प्रो इन CFL1 अंडरस्टूड। एंड अंडरस्टूड। ऑल अबाउट। हाउ इम्पोर्टेंट इज डाउट सॉल्विंग? देखो प्रॉब्लम क्या है करण, मैंने मैक्सिमम बच्चों को फेल होते हुए क्यों देखा है पता है लेवल 1 में? दे रीड द कंटेंट और जैसे आपने बताया चलो क्वेश्चन बैंक सॉल्व भी करते हैं, वो गलतियां करते हैं क्वेश्चन बैंक में। हम्म। द प्रॉब्लम इज दे डोंट वर्क ऑन देयर मिस्टेक्स। हाउ जी। इम्पोर्टेंट इज डाउट सॉल्विंग अकॉर्डिंग टू यू in terms of level 1 preparation and how they should go about seeking doubts? मतलब ठीक है, Finacle पे तो we have a proper ecosystem. At हम्म। Finacle how did you मतलब आपको ये डाउट सपोर्ट कैसे मिला? At Finacle, like I think Finacle used to have like a doubt forum after which we used to fill कि sir ये सब doubts है, and sir used to cover after every reading or after every subject completion. And along with that हमारी जैसे हर रोज क्लास कंप्लीट होती थी तो हम लोग डाउट्स लेके, मतलब मैं तो सीधा सर के पास चले जाया करता डाउट खत्म होने, क्लास खत्म होने के बाद कि सर मुझको ये चीज समझ में नहीं आई, सर मुझको ये चीज समझ में नहीं आई। तो सर यूज्ड टू बी लाइक ओके करण, अभी समझा देता हूँ मैं तुरंत। जबकि इट वाज लाइक 9 रात को 9-9 बजे हम लोग सर से डाउट पूछा करते थे, एंड सर यूज्ड टू लाइक ओके बता दिया। एंड इवन ऑन व्हाट्सएप टू, लाइक नीरज सर जो हमको पढ़ाते हैं उनका सीए फॉर्म भी चलता है, इज लाइक सीएफए ट्यूटर टू। उसके बाद भी यूज्ड टू लाइक गिव, मतलब इतना क्विक आंसर आया करता था हमको। आई वाज लाइक वाओ यार, मतलब क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता था सामने से कि हमारा हमारे डाउट कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। एंड फॉर मी, लेकिन टेकिंग ट्यूशन इज ओनली वन थिंग। आई एम अ गाय हु यूज्ड टू आस्क लाइक मल्टीपल डाउट्स, मैं बहुत सारे डाउट्स पूछता हूँ। एंड कभी कभी सर भी मेरे से परेशान हो जाते हैं, लेकिन ही इज ऑलवेज लाइक ओके करण, ये आपका डाउट है, ये आपका आंसर है, डन। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर दैट। Now uh, let's talk broader career perspective, right? आपने सीएफए में ऐसी क्या चीजें सीखी है जो लेट्स से आप 2 मिनट के लिए सोच, करण तेरा कोई छोटा भाई है जो करंटली 11th 12th में है, ठीक है, एंड इज आस्किंग यू कि सीएफए पढ़ के तूने क्या सीखा है, तो तू सिंपल भाषा में क्या समझाएगा उसको कि तूने क्या सीखा है सीएफए के अंदर पढ़ के? एकदम सिंपल भाषा में बोलना हो तो इट्स लाइक कि आप मेरे हाथ में कोई सी भी कंपनी की रिपोर्ट रख दो, आई कैन गारंटी यू कि मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो सामने दिए हुए बैलेंस शीट के अंदर कितने कितने सच है, कितने ठीक है। मैं बैलेंस शीट एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकता हूँ। आई कैन रिकमेंड यू अ स्टॉक, आई कैन मैनेज अ पोर्टफोलियो इन द सेंस लाइक फॉर एन एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट लाइक 50 लाख रुपीस इन मार्केट्स, देन आई एम द वन हु विल हेल्प यू आउट इन डूइंग सो। I'll manage your portfolio actively. I can like help you in gaining returns, something about market, something about Nifty. This is you. And other than that, on a broader sense, थोड़ा अंदर जाके बताऊं तो इट्स लाइक यू विल बी लाइक अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, जो ऑन अ ग्राउंड लेवल जाके कंपनी को एनालाइज करेगा कि ये कंपनी क्या है, क्या ये क्या होती है, कि इसकी अगर ये मशीन है, ये मशीन इतनी देर इतने इतने घंटे काम करेगी तो इतना प्रोडक्शन होगा, तो दिस इज लाइक कंपनी इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है तो कंपनी का इतना ज्यादा रेवेन्यू हो सकता है। तो ये सब चीजें आप सीएफए के अंदर सीखोगे। इवन करिकुलम है लाइक द रियल लाइफ एग्जांपल्स, अगर करिकुलम से भी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये सब नई नई चीजें आप सीखोगे। एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल सी यू विल learn a bit of like quants finance, how you can integrate a quants with finance, like the students जो भी tech के अंदर हो।
and other things like alternative investments was the thing I found out great because उसके अंदर हमको अलग-अलग चीज़ों के बारे में पता चला लाइक अगर आप कोई एकदम न्यू आप सीखना चाहते हो कि भाई रियल एस्टेट के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट्स करना है, रियल एस्टेट के अंदर कैसे-कैसे टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कैसे करना है वो तो नहीं लेकिन कैसे-कैसे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। कैसे-कैसे अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहो तो मतलब कैसे आपको कम से कम टोकन अमाउंट के अंदर, कम से कम लीगल फीस के अंदर, कम से कम मेहनत करके, कम से कम थोड़ा मतलब एक रियल एस्टेट के अंदर जब भी इन्वेस्ट करते हैं इट्स लाइक ऑलवेज़ हेक्टिक फॉर अ गाय कि मैं मेरे को ये पेपर वर्क करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता चल जाए कि आप रीच के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एक रियल एस्टेट का ईटीएफ ले सकते हो। देन इट्स ऑलवेज़ लाइक अ ग्रेट वर्क, लाइक इट्स ऑलवेज़ लाइक अ ग्रेट थिंग टू लर्न एंड ऑल अबाउट दैट। डेरिवेटिव्स भी सीखने को मिलता है, अगर किसी को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का देखना हो कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं, व्हाट इज़ कॉल पोज़ीशन कि कॉल पोज़ीशन कैसे अपन रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं कॉल पोज़ीशन का, व्हाट इज़ लाइक समथिंग जैसे मुझको समझना हो कि अभी मार्केट्स के अंदर जैसे अभी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया है, लेट्स से एकदम ईज़ी टॉपिक लेते हैं, लाइक अभी कोई 11th-12th गए हो तो वो समझ सके। अभी गवर्नमेंट ने जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया है, तो उसका कौन से सेक्टर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? जैसे अभी आई थिंक अभी 1st ऑफ फ़ेब को बजट आने वाला है, तो बजट का क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है अलग-अलग सेक्टर्स के ऊपर एंड कैसी-कैसी पोज़ीशंस हमको लेनी चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, जिससे अपना पोर्टफोलियो आउट परफ़ॉर्म करे निफ्टी को और लाइक एनी अदर बेंचमार्क इंडेक्स। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता हो, देन डेफिनिटली सीएफए इज़ द पाथ फॉर यू। डेफिनिटली यू विल एन्जॉय सीएफए। गॉट इट। नाउ अब यहाँ तक तो आप पहुँचे हो, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज़ द करियर पाथ? क्या प्लान है आगे का? अभी डेफिनिटली आई विल बी डूइंग इंटर्नशिप ऑन वैल्यूएशन आईबी साइड या फिर और कहाँ पे भी मिले तो आई विल डू इट एंड आल्सो आई एम प्लानिंग टू गिव लाइक सीएफए L2 एंड नवंबर 2026 और लाइक अगस्त 2026 व्हिच विल वर्क ग्रेट फॉर मी एंड अभी देख रहे हैं एमबीए का भी मैं सोच रहा हूँ करने का लेट्स सी अभी सब कुछ अगर मैनेज हो पाए तो आई विल आल्सो डू एमबीए आई विल आल्सो गिव कैट। करंटली तो आप अभी सेकंड ईयर में हैं, सो इंटर्नशिप के साथ-साथ देन आई गेस लेवल 2 एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए। हाँ राइट लाइक दैट। Great. Anyways, thank you so much, Karan, for giving out time. And I'm sure सब लोगों को ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला है. I loved interacting with you, and I hope, and I know this is the first of the kind which we have done. It was actually idea given by a friend of ours. So we really, I really enjoyed today's experience. I hope we keep continuing to do the same for everybody, and this helps students, mostly students and CFA aspirants, if they wish to build a really good career, what tips and what preparation patterns which they need to follow. I think today's session covered a lot of those. Thanking everybody who has watched this video. In case if anybody has any questions, feel free to get in touch with us, or you can simply leave the comments as well in the comment section as well. Thank you so much, everybody.